Hello and welcome everyone. This is Divya Swaraj, and today we have a filmmaker from Bihar who is well known for his out of the box films. The man behind the first Hindi film made completely in Bihar, Mr. Richin Veena Chainpuri. The beautiful film Grinding Humanity was released on 15th of July 2022. Welcome, sir. It's great talking to you. Thank you. Tell us something about the film. Film Grinding Humanity basically talks about two aspects, religion and humanity. And the kind of the scenario we are having right now in our country. As a writer, I felt it was very necessary to touch a subject which is although very sensitive, but I must come to the public with something which is relevant, which is important, and also the film, because it talks about basically about religion and humanity, which comes first, which is more important, religion or humanity. So this was the basic idea, and then I wrote the script, and then when the film was made, I was very apprehensive whether how the public is going to react with this film, but I'm really very, very thankful because the kind of maturity they have shown and they have appreciated, they have seen, they have appreciated, we are overwhelmed. I mean, I'm very more than happy as a filmmaker, I would say. Yes, sir, definitely. It's a beautiful film touching a very sensitive topic and very beautifully presented, sir. So before moving forward with the film, I would like to ask you about your training as a filmmaker and आपकी journey क्या रही है as a filmmaker till date? Training, I'm a self-taught filmmaker. So my training as a filmmaker was in a slightly different way, in my own way. Right from my childhood, I was very much into art. I was good in sketching, painting. I learned Hindustani classical music, instrumental music for 7 years, and I was into acting. I was in Loyola High School, so I was a part of Dramatic Society. वहाँ पे मैं एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हमेशा परफॉर्म करता था. There itself, my class teacher Devyani Chaudhary ma'am, she took me to my guru, late Pyare Mohan Sahai, who was the first NSDN from Bihar. He was an eminent theatre personality. So as a child artist, I joined his group, Lok Manch. And all of a sudden from school, I was performing in front of a large audience in Kalidas Rangalaya, Ramendra Bhavan, Bharatiya Nitya Kala Mandir. So during this rehearsal time, जो कि हुआ करता था PNT रिक्रिएशन क्लब में, तो एज ए किड, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मेरे बहुत छोटे छोटे लाइंस होते थे. एक अगर प्ले 1.5 घंटे 2 घंटे का होता था तो मुझे 3-4 एंट्री मिलती थी एक लाइन के साथ. बट एक महीने प्रैक्टिस होती थी, एंड देयर आई वॉच्ड माई गुरु, द वे ही यूज्ड टू एक्सप्लेन द सीन्स, द वे ही यूज्ड टू नरेट अ सीन, explain every single character. At that time I was like blown away. I was so fascinated. The kind of मतलब एक तरफ जो प्रैक्टिस चल रही होती थी वो अलग चीज़ थी, and I used to watch my guru because I was so close to him and the way he used to narrate the scenes. That excitement took me and I decided that मुझे अब actor नहीं बनना है. I'll be a filmmaker one day. That was my first training. My second training was that I told my dad that I want to be a filmmaker. Then he smiled and he said that watching films of masala movies of Manmohan Desai will not do. You must watch films of the great Raj Kapoor Sahab, then Guru Dutt, B.R. Chopra, Satyajit Ray, Mehboob Khan, Bimal Roy. Now he was talking about the films which was made in the glorious decade of 50s and 60s. And that time there was no internet, there was no Google. So I was very confused how I can watch those films. उसी वक्त क्या हुआ कि दूरदर्शन एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के साथ आया जिसमें वो हर एक 2 महीने 3 महीने के इंटरवल पे ये ग्रेट फिल्म मेकर्स का फिल्म लेकर वो आता था रात के 10:40 पे. लगातार 7 दिन है तो राज कपूर स्पेशल. So 7 best films of Raj Kapoor every day at night. So my dad used to sit beside me and he said that देखो ये है फिल्म, just see at the frames, just look at the lighting, just look at the frames, how beautiful it is. So I could
relate what exactly he's saying because I'm good in sketching and painting. So I had that color sense, I had that frame sense. वो एक automatically था. That was my second training as a filmmaker, जहाँ पे मैं देख देख कर सीखा. My third and final training was in 2008. My own younger brother Nitin Chanpuri, he was an associate director of the great filmmaker Anurag Kashyap in Mumbai. And that time Devdi एक फिल्म आई थी अनुराग जी की जो शूट चल रही थी. I was in Delhi that time working, and my brother called me. कि भैया you are so passionate about films, so अभी एक सीन चल रहा है चांदनी चौक में, तुम आ जाओ, दिन भर अनुराग जी आपको बुलाए हैं, अनुराग कश्यप तुमसे मिलना चाहते हैं. So just because of my brother, he was associate director, I went there, and for the first time I met this great filmmaker, and he said आप नितिन जी के बड़े भाई हैं. मैंने कहा जी हाँ मैं बड़ा भाई, चलिए हम लोग एक सीन शूट करते हैं. And this was the scene where Paro was washing the dirty clothes of Dev in a small bathroom. That was the scene was to be shot. And Anurag Kashyap was sitting in another room in front of a monitor, and he asked me to sit just beside him. So very nervously I sat beside him, and with a typical Anurag Kashyap style, he took his cigarette, he was smoking, and he was looking into the monitor. वो scene शुरू हुआ. So he was looking into the monitor, and I was looking at him. Okay. I was looking at him, then I was looking at the monitor, I was looking at him, and this manner, I mean, that was my third and final training. I would say lifetime experience, one-day experience. And then from there, I made a short film called Nine in 2017, an experimental short film. Then another short film of 42 minutes, The Bathtub, in 2018. And then came Grinding Humanity as a feature film this year. Okay, thank you, sir. Now I would like to know, do you have any cities or any state या कोई भी ऐसा शहर जो आपके पूरे करियर पाथ में बहुत ही मेजर रोल मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि पटना है. तो पटना में जन्म हुआ, मैंने स्कूलिंग यहीं से हुआ, लाला हाई स्कूल से. Then I did my graduation from Patna College. I did theatre, as I said, in लोकमंच. वो पटना के सारे थिएटर ये पे मैंने परफॉर्म किया. तो मेजर पार्ट मेरा पटना में भी था. पटना ने मुझे सब कुछ दिया. पटना की गलियों में घूमा, बाकरगंज का एरिया, लोहानीपुर का, मेरा बचपन लोहानीपुर में भी था. तो मेरी ट्रेनिंग एज अ फिल्म मेकर, मैंने अपार्ट फ्रॉम जो मैंने अभी डिस्कस किया, मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व, वो एक नेचर है, ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ, उनके बिहेवियर पैटर्न को मैं कैच करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ. मेरी ट्रेनिंग उसी तरीके से हुई. तो पटना ही एक ऐसा शहर है. दिल्ली में आई वॉज इन दिल्ली, बट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट GSA of Lufthansa German Airlines, and then I joined Thomas Cook. Because I was a self-trained filmmaker, so I never went to any film unit or film institute as such. तो दिल्ली में मैं कुछ सालों के लिए नौकरी किया, लेकिन मेरा मेजर पार्ट जो मेरा लाइफ का है, और पटना में ही मैंने बिहार में ही ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी बनाया. तो मेरे लिए ये शहर सबसे करीब है, मेरे दिल के करीब है, और शहर ने मुझे सब कुछ दिया है. अब वक्त आ गया है कि मैं अपने शहर को, अपने शहर के लोगों को कुछ मैं दूँ अपने साइड से. जैसा कि हम लोग सब जानते ही हैं, यू आर एन इंडिपेंडेंट filmmaker who loves to experiment or work on different aspects of the society in which we live. And आपकी जो ये फिल्म है ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी, इस मूवी ने बहुत ही एक सेंसिटिव इशू या टॉपिक को टच किया है ऑफ द एंटायर नेशन, इफ वी से. So was there any kind of fear or doubt before making the film or while making the film? As a filmmaker, you need to be very brave and very honest. Otherwise, you will never ever able to make any film. You will never be able to write anything. Fear factor हर एक जगह पे होता है. सिर्फ यही नहीं होता है कि पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगा. Fear factor आपको सबसे पहले ये होता है कि मैं बना पाऊँगा क्या नहीं. Fear factor ये होता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि फिल्म बीच में रुक जाएगी. तो वो फैक्टर वो तो कॉन्स्टेंटली आपके साथ चलते रहता है. But you have to overpower those fears because you need to be very brave. If you want to write something like content-driven films, if you want to write something, at every point of time you will feel as whether I should write it or not. So that should not go in your head. I never write from my head. I write from my heart.
सो आई फॉलो माई हार्ट। मैं दिल से लिखता हूँ, दिमाग से नहीं लिखता हूँ। जब आप दिल से लिखते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं सोचते हो ये फियर पर, और ये फियर होता है, सबके अंदर होता है। एज ए राइटर आपको होगा, डायरेक्शन में जब आप उतरेंगे आपको होगा, बट यू नीड टू ओवरकम दिस फियर्स। ये तो है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक एनीथिंग। फिर वो बीच में ही आपको रुक जाएगा कि पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी, लोग क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त लोग क्या बोलेंगे। It takes a lot of courage, मुझे ऐसा लगता है, to make a film on such a sensitive topic जिसके ऊपर ना ही एक पर्टिकुलर स्टेट का बट पूरा नेशन बात कर रहा है इसके ऊपर। We are very happy. I mean, we never thought of this, और मैंने सोचा नहीं था, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का रिएक्शन मिलेगा। लेकिन यही है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है। जब पहली फिल्म, शॉर्ट फिल्म मैंने 9 बनाई थी, विक्रांत चौहान जी इसमें काम किए थे। इट वॉज अ साइलेंट मूवी, 23 minutes with no dialogues. That time also that fear and apprehension was there, that I don't know how my own city will react after watching this film. But they were so happy to see कि भाई ऐसा चीज़ भी बिहार में बनने लगी, बनना चाहिए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल, चाहे आप किसी फील्ड में हो, ये सिर्फ फिल्म की ही बात नहीं है, किसी भी फील्ड में हो, फियर फैक्टर को आपको ओवरकम। आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप नर्वस होते हो, है ना। जब आपके पास वो पेपर, क्वेश्चन पेपर लेकर जब वो पहुंचता है तो आपके दिल की धड़कनें तेज रहती हैं। सामने वाले को पेपर मिल गया, जब आपके तक वो पेपर आता है तो आप आंख बंद करके, मैं तो यही करता था, आंखें बंद करके पेपर लेके 3 बार ऐसे से करता था, उसके बाद आंखें खोलता। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। सो यू नीड टू ओवरकम दिस फियर्स, वेरी सिंपल। Yes, definitely. और जैसा कि हमने देखा है इस पूरे फिल्म में कि इस मूवी की जो पूरी शूटिंग हुई है वो बिहार में ही हुई है completely. So was it difficult to make a film in Bihar? It is very difficult to make a film in Bihar, and I'm not criticizing it. The fact is that there is no post-production facilities here. There is no studio as such. So on a pre-production stage, you can get away with it. फिर आप शूट करते हो, you have beautiful locations in Bihar. तो आपको परमिशन भी मिल जाएगी, आप शूट करोगे। बट एज सून एज यू इंटर इनटू द पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज, इसमें सारा कुछ होता है। जब कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप कैसे करोगे? और शायद यही कारण है कि पिछले 40 वर्षों में, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, दैट द लास्ट फिल्म, अ कंप्लीट फिल्म फ्रॉम बिहार, आई वुड से इट वाज गिरीश रंजन सर्स कल हमारा है, एंड प्रकाश झा सर, दामुल एंड हिप्पीपुरे हालांकि अब झारखंड हो गया, उस समय तो वो बिहार का ही पार्ट था। उसके बाद किसी फिल्म मेकर ने हिम्मत नहीं की 40 साल तक, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ। As soon as you decide to go outside for post production, अगर आप बॉम्बे जाना चाहते हो, कोलकाता जाना चाहते हो, तो आपके जेब में फिर उतने पैसे होने चाहिए, फिल्म का बजट बढ़ जाता है। So if you want to do something in a limited budget, it is very, very difficult, and I think it's high time that government should also, state government should look into it. कुछ पॉलिसीज आने चाहिए फिल्म मेकर्स के लिए, कुछ ऐसा हो, सुविधाएं हो, प्रोडक्शन हाउस हो, स्टूडियोज़ हो, और कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ जरूर होनी चाहिए, और साथ के साथ सब्सिडी होना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक कोई फिल्मकार अपने घर से पैसे लगा कर बनाएगा, तो फिर कभी न कभी हार जाएगा, थक जाएगा। ये चीज़ है। वी हैव सच ग्रेट टैलेंट्स यहाँ पे, इतने टैलेंटेड लोग हैं, एंड देन अगर फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है तो ये चीज़ और इन्हांस हो सकती है हमारे फ्यूचर में। तो क्या एक्टर्स के लिए भी इट वाज डिफिकल्ट टू एक्ट हियर, शूट हियर? No, actors I think not difficult, because यहाँ में एक चीज़ है कि यहाँ एक से एक एक्टर्स हैं। लोग बड़े बड़े एक्टर्स को भी जान रहे हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी सर हुए, मनोज बाजपेयी सर हुए, लेकिन बिहार की मिट्टी में एक ज़बरदस्त, एक अलग खुशबू है, एक अलग ताकत है। यहाँ पे इतने अच्छे एक्टर्स हैं थिएटर के, जो कुछ हमारे फिल्मों में भी हैं और जो हमारी फिल्म में नहीं भी हैं वो भी। इतने अच्छे एक्टर्स हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। आई मीन आप उनको एक कैमरा से शूट करो, एक लाइट से करो, आप जैसे करो, दे आर सो कोऑपरेटिव इन दैट सेंस कि एक्टर्स के लिए मुझे कभी ऐसा तकलीफ, हाँ कुछ लोगों में थोड़ा होता है कि भाई थोड़ा में एरोगेंस ज़्यादा है, या थोड़ा आपका एक दूसरा पर्सनालिटी है, तो वो तो डील करना होता है एक फिल्म मेकर को, डायरेक्टर को। बट एज एन एक्टर दे आर वेरी मैच्योर्ड एंड दे अंडरस्टैंड देयर क्राफ्ट वेरी वेल। उनको वो सेंस है कि कैसे काम करना है।
Okay. So what are we expecting from you in coming future? What are your new projects? New project. I'm shooting a film called Dhake Dhunuchi, a proper feature film of 2 hours 10 minutes. और ये मैं 2018 से शूट कर रहा हूँ, 9th September. In between we lost 1.5 years because of COVID, but no excuses as such. That film has got delayed because of various reasons, and one of the reasons is the financial crunch. But we have already shot 98% of the film. अभी 2-3 दिन का शूट बचा है और उसके बाद हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में एंटर करेंगे. वो एक प्रॉपर कमर्शियल फिल्म जिसे आप कहते हो, एक कमर्शियल पंच है उस फिल्म में और एक फिलोसफिकल अप्रोच भी है. तो एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट अंडर सिनेमा न्यू रियलिज्म, दैट इज कट्टम कट्टी. और ये मोस्ट लाइकली अभी मैं फाइनल ड्राफ्टिंग में हूँ स्क्रिप्ट के, तो वो मोस्ट लाइकली नवंबर में शुरू होगा. हाँ, शुरू होगा और अगले साल सिनेमा हॉल में फिर आप लोग से मिलेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेंगे हम लोग अगले साल फिर से. और क्या कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे हमारे न्यू कमिंग और बडिंग फिल्म मेकर्स को हु आर विलिंग टू वर्क इन बिहार इटसेल्फ अगेन, जो बिहार बड़े फिल्म मेकर्स को मैं ये कहूँगा कि बी ब्रेव एंड बी ऑनेस्ट एंड बी ब्रेव. यू राइट व्हाटएवर यू फील एंड नेवर गिव अप. टैलेंट बहुत है और ये सब चैलेंजेस आएगा. लोग कभी कुछ लोग परेशान करेंगे, आपको फिनेंशियल क्रंच रहेगा, कोई पैसे नहीं लगाएगा, आप परेशान हो गए कहाँ से लाएं फंड, क्राउड फंडिंग करें, क्या करें. बट द काइंड ऑफ टैलेंट दे है, मैं उनको यही कहूँगा कि एंड रीड अलॉट. खूब न्यूज़पेपर पढ़ें, एक क्वालिटी न्यूज़पेपर पढ़ें और कहानियाँ कभी भी एसी के कमरे में एसी रूम में बंद होकर कहानियाँ आप नहीं लिख सकते हो. खूब ट्रैवल करें, खूब घूमें, गलियों में घूमें, पैदल घूमें. कहानियाँ यहीं गड़ी हुई हैं, इसी ज़मीन में गड़ी हुई हैं, आपको खोद कर निकालना है. तो ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है. बहुत टैलेंट है यहाँ. मैं यंग फिल्म मेकर्स को मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. दे आर जो अपकमिंग फिल्म मेकर्स हैं, आई ऑनेस्टली से दैट मुझे लगता है कि आई एम नो वेयर. वी ऑल आर स्ट्राइविंग, वी ऑल आर लर्निंग. तो यही कहूँगा मैं. बिल्कुल सर. It was great talking to you today and we wish you all the good luck for your upcoming movies. We love your films. You make out of the box films, no doubt. इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. And thank you so much sir. Thank you so much Divya. It was lovely talking to you. Thank you sir. अभी हमारे साथ बैठे हैं ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी के राशिद खान यानी कि एक्टर अनूप कुमार जी. अनु जी, आपका स्वागत है आज यहाँ. सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि पूरे शूटिंग के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. इसमें जितने भी कलाकार हैं वो सभी थिएटर के आर्टिस्ट और सारे आर्टिस्ट ने अपना बेस्ट दिया है. तो फिल्म के जो डायरेक्टर रुचिन वीना चैनपुरी हैं, उन्होंने अपने स्किल से जितने भी एक्टर थे उनका जो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते थे उन्होंने मैक्सिमम निकाला है. और फिल्म आपने देखी है तो आपको एहसास होगा कि ये कितनी बंधी हुई, कितनी सदी हुई फिल्म है. जी बिल्कुल. तो पूरे मूवी के शूटिंग के दौरान क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह का डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा है शूटिंग के टाइम एज एन एक्टर? क्योंकि पूरी जो शूटिंग हुई है इस मूवी की वो बिहार में हुई है, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, मेरा मानना है कि परेशानी तो हर जगह आती है, बट जो हमारा टीम था, इस टीम को हम ये जरूर कहेंगे कि इतने अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ ये फिल्म बनाई गई है कि परेशानी कह के ऐसा कुछ नहीं था. देखिए, अब बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था वहाँ पे और ये सारे जो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे, सबके बीच में एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी. सब में वो इंथुजियाज़म था कि हमें ये फिल्म करनी है और इसको बहुत जल्दी पर्दे पे लाना है और सब ने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है. इसीलिए किसी उसमें ये कहें कि ये सारा श्रेय जाता है फिल्म के डायरेक्टर को, उन्होंने उसमें बेस्ट सबका निकाला है. जी बिल्कुल. तो टिल डेट आपका जो पूरा करियर रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. देखिए, मैं थिएटर से जुड़ा हूँ स्कूल टाइम से ही. स्कूल में हमने प्लेस किए, कॉलेज में किए, कुछ ऐसे नाटक किए जो पटना, कानपुर और दिल्ली में भी हुए. उसमें कहोरी पुदमन, होली, सरकार और 3-4 और प्लेस थे जो हमने स्टेज किए हैं. तो एक अंदर में इच्छा थी कि
कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कभी अगर मौका मिले तो हमको उसको करने में ज़्यादा मज़ा आए। तो ये जो फिल्म आई और इसमें जो कैरेक्टर में हमको कास्ट किया गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और वो लीक से थोड़ा हटके था। तो मुझे ऐसा लगा कि समाज में जो इश्यूज चल रहे हैं वो इश्यूज को ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो राशिद खान का है वो बड़ा अट्रैक्ट करेगा। तो आपने फिल्म देखी है और आप ये समझ पाएंगे कि उस फिल्म में मैंने कितना जस्टिफाई कर पाया रोल को, ये तो ऑडियंस बताएगी, बट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जी, आपका जो कैरेक्टर था बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था बोलेंगे उस पूरी फिल्म में। और जो अपकमिंग मूवीज है जो रुचिन सर की आ रही है, आपका क्या उसमें रोल है या कंट्रीब्यूशन है? अगली फिल्म जो आ रही है उसका कट्टम कट्टी नाम है और उम्मीद करता हूँ कि ये नवंबर में फ्लोर पे आएगी। इसकी सारी शूटिंग झारखंड में होनी है। मेरा रोल इसमें प्रोडक्शन का है, हम लोग उसमें प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं और एक अच्छी टीम बनी है और कुछ लोकेशंस भी फाइनल हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ नवंबर एंड में ये फ्लोर पे आएगी और जब आएगी तो हम लोग फिर उसको न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से हम लोग को जरूर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आपके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और जो हमारे अपकमिंग एक्टर्स हैं जो बिहार में, जो न्यू बडिंग एक्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं बिहार में, वी हैव ग्रेट टैलेंट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है बच्चों में। तो ऐसा कोई सजेशन आप वो लोग को देना चाहेंगे या एज अ गाइड आप वो लोग को गाइड करना चाहेंगे? देखिए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिहार जो है वो टैलेंट से भरी हुई भूमि है। यहाँ टैलेंट इशू नहीं है, इशू ये है कि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और रुचिन जी ने जिस तरह से एफर्ट लगा के और इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने हिम्मत करके और फ्लोर पे लाया है, तो बच्चे जो भविष्य इसमें नहीं तलाश रहे थे उनके अंदर एक उम्मीद जागी है कि आने वाले दिनों में शायद और भी फिल्में बने, उनको भी मौका मिले, उनको भी अपनी प्रतिभा को साबित करने का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ बच्चे जो अभी थिएटर कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं उनको ऑनेस्टली अपने काम को करना चाहिए और अपने आप को और पॉलिश करना चाहिए, सो दैट कल ये सिलसिला शुरू होने वाला है। इसमें लीड रोल में आ गए हैं रुचिन, तो रुचिन के काम करने से बहुतों के बीच में एक कॉन्फिडेंस आया है कि ये अब बिहार भी एक ऐसा जगह है, यहाँ भी एक अच्छे लोकेशन है, यहाँ भी शूट किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों में और भी कुछ और डायरेक्टर्स आएंगे और भी प्रोड्यूसर्स आएंगे। तो इन बच्चे जो अभी मार्केट में जो स्टेज कर रहे हैं, इन अगर पॉलिश करके अपने आप को रखेंगे तो उनके लिए भी भविष्य में संभावनाएं बहुत हैं। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो लोग पढ़ाई को, स्टडीज को इतना प्रमोट करते हैं, तो क्या ये भी एक करियर पाथ है जिसको इक्वली इनकरेज करना चाहिए बच्चों में? बिल्कुल करना चाहिए, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ इसकी पढ़ाई हो भी रही है बट उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए कि हमको कोई कैरियर दिखता नहीं है। लेकिन अब ये अभी जो ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी के आने के बाद से जो मैसेज गया है सोसाइटी में, तो बच्चों में भी अब वो अवेयरनेस ही बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और एजुकेशन पॉलिसीज़ में मैं कहूँगा गवर्नमेंट का थोड़ा इसमें ध्यान होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ कर पाए वो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार किसी भी स्टेट, इवन बॉलीवुड के किसी भी कलाकारों से कम प्रोड्यूस करने वाला स्टेट नहीं है। बिल्कुल, और कुछ ऐसा हो जहाँ की हमारे स्टेट के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये पॉलिसी मैटर है, ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारी फिल्में जिसने देखी है। अभी तो कई लोग हैं जो बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, लोग के मैसेज आ रहे हैं कि बिहार में भी चांसेस हैं। तो अगर वो लोग हिम्मत करके आगे आएंगे तो यहाँ इतना बड़ा अरेंजमेंट है, लोकेशन अच्छे हैं, कलाकार अच्छे हैं। परेशानियाँ तो होती हैं क्योंकि कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है तो पोस्ट प्रोडक्शन परेशानी होती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि परेशानी किस जगह नहीं होती है, हर जगह बिल्कुल, जहाँ शुरुआत है वहाँ परेशानी बिल्कुल है। लेकिन जो लड़ेगा वही जीतेगा। बिल्कुल, तो बेशक। मेरे समझ से आने वाले दिनों में बच्चों को ये मैसेज है कि वो अच्छा काम करें, अपने आप को और तैयार करें और
आने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, अपने आप को इतना तैयार करें कि आप उनके सामने अपनी प्रतिभा को साबित कर सकें। उन तमाम कलाकारों को मेरी शुभकामनाएं। तो चलते चलते अनु जी, एक आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा। मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप एक प्यारा सा छोटा सा गाना हमें अगर सुना सके। ये ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी की एक बहुत अच्छी कंपोजिशन है और बहुत ही अच्छा गाया भी है उसको। ये बहुत पॉपुलर हुआ है ये गाना सोशल मीडिया में और सारे प्लेटफॉर्म्स पे। मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाता हूँ। दीवानी है, दीवानी है, उम्मीद दीवानी है, उम्मीद दीवानी है। थैंक यू। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है जो हम लोग जब मूवी देख रहे थे वहाँ पे जब ये सॉन्ग प्ले होना शुरू हुआ तो आई गेस सबके गूज बम्स वहाँ आ गए होंगे और बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है और जिस सिनारियो में इसको पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत प्रशंसा हुई है इस गाने की। जितना अच्छा कंपोजिशन है उतना ही अच्छा गाया भी है। जी, तो जी, मैं ये कहूँगा कि हम तो गाने के शौकीन हैं और जो भी श्रोताओं ने या दर्शकों ने देखा है इसको, आप लोग ने इसको बहुत सराहा है, आपका आशीर्वाद मिला है, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन हमारा रहा है आपके साथ एंड आई होप कि जो हमारे जो यंगस्टर्स है, जो अपकमिंग एक्टर्स है, उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हो, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस उनको मिली हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो अब है हमारे साथ फिल्म ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी के सन्यासी जी, एक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर रंजीत राज जी। आपका बहुत स्वागत है हमारे यहाँ। थैंक यू सो मच। आप हमें सबसे पहले अपने जर्नी के बारे में बताइए। व्हाट योर जर्नी हैज बीन। आपने शुरुआत अपनी करियर की कहाँ से की थी? जी, मैं लंबे अरसे से थिएटर कर रहा हूँ पटना में रहकर और मेरी शुरुआत 2004 से हुई थिएटर से। वैशाली नाटक है, उसमें पहली बार मैंने भाग लिया था। वहीं से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। ओके, सो ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी तक आपका जो जर्नी रहा है वहाँ तक पहुँचने का, आप उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बहुत डिफ़िकल्ट रहा। रंगमंच करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लोग बहुत तंगी हालत में रंगमंच करते हैं, आते हैं पढ़ाई करने, लेकिन एक ख्वाहिश है, लोगों को लगता है कि बॉलीवुड में जाएंगे, बड़ा काम करेंगे, तो सोचने से ही नहीं होता है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इस थिएटर लाइन में। अगर कुछ भी बड़ा करना है तो स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, और वाइल फिल्मिंग ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बिहार में? क्योंकि हालांकि ये पूरी मूवी जो शूट हुई है बिहार में ही हुई है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत शानदार रहा। और हमारे जो कास्ट ये डायरेक्टर सर है रुचिन सर, उनका डायरेक्शन और राइटिंग इनक्रेडिबल है, बहुत अच्छा लगा और उनके मार्गदर्शन पे मैं काम करता हूँ। ये जो मैं कैरेक्टर कर रहा था सन्यासी का, वो बहुत चैलेंजिंग रोल था। इसके लिए वर्कशॉप सर ने सभी कैरेक्टर आए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा करके। फिर मैं ऐसा रोल मैंने कभी नहीं किया था, मेरे लाइफ के लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। ओके, सो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आपका रहा हो आपकी शुरुआती दिन से लेकर के टिल डेट आज तक जो आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी शुरुआती, मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, अब वो नहीं रहे। वो गांव में भजन गाते थे, गाना बहुत अच्छा, वो धार्मिक जो भजन होते हैं। तो मुझे भी लगता है उनका कुछ डीएनए का ये प्रभाव है कि मैं भी एक्टर हो गया। तो वो अब नहीं रहे, उनका आशीर्वाद है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्टर होने के साथ साथ आपने एज अ कास्टिंग डायरेक्टर भी अपना रोल प्ले किया है इस फिल्म में। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कास्टिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है कि जो सर ने जो लिखा है वो कैरेक्टर, वो पोर्ट्रेट कैसे करेंगे, वो डीपली जाएंगे, क्राफ्ट वर्क करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने, सर और मैं, इंडिविजुअल एक्टरों से मिला,
रोज़ में हम लोग मिलते थे, देखते थे। और जो मैं कास्टिंग कर रहा था तो पहले मैं देख रहा था इसका बिहेव कैसा है, वो मैं लगातार मिलने से क्या होता है कि वो एक्टर लोग भी बोलते परेशान हो जाते थे कि आप रोज़ मिलते हो, कुछ बोलते नहीं कि आप फिल्म बना रहे हो। हम लोग बोलते थे अच्छी फिल्म है, मिलते हैं तो रीड करता हूँ बिहेव, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो तो कैरेक्टर को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो इस आधार पे करता हूँ कि इंसानियत है कि नहीं। ये जो फिल्म है ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी, इंसानियत बेस है, धर्म और इंसानियत। तो मैं वही ढूंढता हूँ कि ये बंदा जो लड़का या लड़की जो भी एक्टर हैं उनमें क्या सोचते हैं इस कैरेक्टर को लेके, एज ए बीइंग ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, उनकी सोच क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मूवी जिस थीम पे बेस्ड है या जिस इशू के बारे में ये पूरी फिल्म बात करती है, अनटिल एंड अनलेस वो जो एक्टर्स है, इंसान है, वो खुद में ही इस चीज़ के बहुत बड़े बिलीवर नहीं है, तब तक लिए बहुत मुश्किल होता है ये ऐसा रोल प्ले करना। तो यस, वेरी नाइसली कास्टेड, लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को प्रेजेंट किया गया है एंड बहुत ही क्लीन तरीके से इस इशू के बारे में बहुत ही ओपन तरीके से बात किया गया है इस मूवी के बारे में। सो आपको ऐसा क्या लगता है कि मूवी शूट करने टाइम या मूवी बनने से पहले आपके मन में किसी भी तरह का ऐसा कोई डाउट था कि क्या रिएक्शन आएगा ऑडियंस का इस टॉपिक को लेके? मुझे कोई डाउट नहीं था। मैं स्क्रिप्ट को बहुत पढ़ा था और लंबा अरसा से मैं रंगमंच कर रहा, तो मुझे मालूम है ये जो थीम है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत प्रभाव देगी लोगों पे, तो वही होगा। सबने बहुत लाइक किया, 100 में 100 इसकी रेटिंग थी। तो ये रुचिन सर का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सन्यासी का कैरेक्टर भी दिया, दोहरी भूमिका थी मेरी कि इसमें कास्टिंग भी करो, तो बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल। और क्या हम लोग आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी देख सकते हैं? हाँ जी, मेरी बहुत सारी आ रही है मूवी, वेब सीरीज आ रही है। सर की, रुचिन सर की एक और मूवी आ रही है धाके धुनुची, उसमें भी मैंने गैंगस्टर का कैरेक्टर किया है। जी बिल्कुल। तो हम लोग आपको बहुत ही बेस्ट विशेस देते हैं आपके अपकमिंग करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन एंड अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। थैंक यू सो मच। तो ये थी ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी की टीम के कुछ मेंबर्स की अनसुनी कहानियां। आगे भी हम लोग ऐसे ही उनकी टीम के बाकी मेंबर्स से बातचीत करेंगे और उनके साइड की स्टोरीज को सुनेंगे। This is Divya Swaraj. Thank you so much.